Good morning to all of you. I am Siddhant Banerjee from Government Kanglamaji College, Dondi. I study in class BSc second year. My topic is photorespiration, which is guided by Dr. Charulata Philip ma'am. First, we will see the synopsis of my topic photorespiration. That is, first, what is photorespiration? Obviously. Second, mechanism of photorespiration. Third, its significance. Fourth, conclusion, and finally, the reference. So, what is photorespiration? Photorespiration refers to a process that is usually happens in C3 plants in which the enzyme rubisco oxygenates RUBP in the presence of light, wasting some of the energy produced on photosynthesis. So, it means photorespiration generally C3 plants में होता है. इसमें रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेस एक्टिविटी शो करता है और आरयूबीपी को ऑक्सीजनेट करता है. इस प्रोसेस में एनर्जी लगती है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोड्यूस हुए रहती है. देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज अ वेस्टफुल प्रोसेस. इट इज़ ऑल्सो नोन एज C2 cycle or glycolic acid cycle because the key intermediate compound around which the photorespiration evolves is glycolic acid, which is a 2 carbon compound. Means इसमें जो की कंपाउंड बनता है दैट इज़ ग्लाइकोलिक एसिड, जिससे फोटोरेस्पिरेशन आगे बढ़ता है, वो 2 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए इसको C2 साइकिल या ग्लाइकोलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है. In this process, CO2 evolves in the presence of light due to the oxygenous activity of ribosco enzyme. This CO2 contains carbon which is fixed during photosynthesis. That's why it is also called as a wasteful process. इसमें जो CO2 इवॉल्व होता है वो पहले से ही फिक्स्ड किया हुआ CO2 होता है, जो फोटोसिंथेसिस के समय फिक्स पहले से ही हुआ रहता है और वही इवॉल्व होता है, इसलिए इसको वेस्टफुल प्रोसेस भी बोलते हैं. नाउ मैकेनिज्म ऑफ फोटोरेस्पिरेशन. द प्रोसेस ऑफ फोटोरेस्पिरेशन इज कंप्लीटेड अलोंग 3 ऑर्गेनेल्स, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया. इट प्रोसीड एज फॉलोज. फर्स्टली क्लोरोप्लास्ट में जो आरयूबीपी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लाइकोलेट में चेंज होता है. देयर आफ्टर फॉस्फोग्लाइकोलेट ऑक्सीडाइजेज एंड converts into hydrolyzes and convert into glycolate in the presence of phosphatase enzyme, eliminating an inorganic phosphate. Thereafter this glycolate comes into the next cell organelle, that is peroxisome, in which it converts into glyoxylate. Glycolate reacts with O2 in the presence of glycolate oxidase enzyme, which uses FMN as its prosthetic group and convert into glyoxylate. Thereafter glyoxylate convert into glycine. Thereafter glyoxylate convert into glycine, and that glycine comes into the next cell organelle, that is mitochondria. Here glycine two molecules of glycine condenses, मतलब दो ग्लाइसिन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंडेंस्ड होते हैं और सेरिन में चेंज होते हैं, रिजल्टिंग इन द इवोल्यूशन ऑफ NH3 and CO2. Thereafter this serine goes back to the peroxisome and converts into hydroxypyruvate, which later converts into glycerate. This glycerate goes to the chloroplast and converts into phosphoglycerate, which is available for the photosynthetic process. Next is the significance of photorespiration. मतलब फोटोरेस्पिरेशन के क्या यूजफुलनेस है. जो amino acids like glycine and serine that are synthesized during photorespiration are precursors of many essential metabolites such as proteins, chlorophyll, nucleotides, etc. जो अमाइनो एसिड्स जो फोटोरेस्पिरेशन में बनते हैं, जैसे ग्लाइसिन और सेरिन जो बने थे, वो बहुत से एसेंशियल इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स को
बनाने के लिए एसेंशियल होते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स के प्रिकर्सर्स मॉलिक्यूल होते हैं। प्रिकर्सर मतलब जो मॉलिक्यूल, मान लो कोई मॉलिक्यूल बन रहा है और वो जिससे बन रहा है तो उसको प्रिकर्सर बोलते हैं। जो मॉलिक्यूल जिससे बनता है उसको प्रिकर्सर बोलते हैं। इसलिए ग्लाइसिन एंड सेरिन आर द प्रिकर्सर ऑफ मैनी एसेंशियल मेटाबोलाइट्स सच एज प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लियोटाइड एसेट्रा। ये ग्लाइसिन और सेरिन जो हैं वो प्रोटीन्स, क्लोरोफिल और न्यूक्लियोटाइड्स को बनाने में मदद करते हैं। दैट्स वाई दे आर referred as the precursors of प्रोटीन्स, क्लोरोफिल एंड न्यूक्लियोटाइड्स। तो उनको बनाने में ये मदद करते हैं, इसलिए फोटो रेस्पिरेशन एक यूजफुल प्रोसेस बोल सकते हैं उसको। कन्वर्सन ऑफ ग्लाइकोलेट इनटू ग्लाइऑक्सिलेट कंज्यूम NADPH जनरेटेड इन द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। Thus, photo respiration might be involved in dissipating of excess reducing power। जब ग्लाइकोलेट ग्लाइऑक्सिलेट में चेंज होता है तो इसमें एक NADPH यूज़ होता है जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट कई बार फोटोसिंथेसिस के दौरान एक्सेस में हो जाता है। तो इसके फोटो रेस्पिरेशन में यूज़ हो जाने से एक्सेस रिड्यूसिंग पावर जो है वो कम हो जाता है। Glycolate may be the end product of the photorespiration which protects against destructive action of photo oxidation। ग्लाइकोलेट जो है वो फोटो रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट भी हो सकता है। कई बार फोटो रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट ग्लाइकोलेट भी हो सकता है। और ग्लाइकोलेट क्लोरोफिल को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाता है। फोटो ऑक्सीडेशन मतलब क्लोरोफिल का डीनेचर हो जाना। क्लोरोफिल का फोटो ऑक्सीडेशन मतलब क्लोरोफिल का डीनेचर हो जाना, तो फिर वो कोई एक्टिविटी कर नहीं सकता। इसलिए जो ग्लाइकोलेट जो है वो उसको फोटो ऑक्सीडेशन से बचाता है। इसलिए एक फोटो रेस्पिरेशन एक यूजफुल प्रोसेस बोल सकते हैं उसको। नेक्स्ट, फाइनली द कंक्लूजन। Photorespiration is a wasteful process because it neither accounts for the generation of energy nor the fixation of CO2. Rather, it causes the liberation of fixed CO2 by consuming energy. फोटो रेस्पिरेशन को एक वेस्टफुल प्रोसेस ही बोलेंगे क्योंकि वो उसमें ना एनर्जी जनरेट होता है, ना ही उसमें कोई CO2 फिक्स होता है, बल्कि वो वही फिक्स्ड CO2 को, जो पहले से फिक्स्ड हुआ जो CO2 रहता है, उसको फिर से इवॉल्व करा देता है और एनर्जी भी कंज्यूम करता है उस चीज़ के लिए। इसलिए उसको एक वेस्टफुल प्रोसेस ही मानेंगे। फोटो रेस्पिरेशन जनरली हैपन्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज लोअर देन O2 विच इज़ अगेंस्ट द स्टिमुलेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ। फोटो रेस्पिरेशन तब होता है जब O2 का ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन CO2 से ज़्यादा रहता है, जो कि अगेंस्ट है स्टिमुलेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ का, मतलब प्लांट ग्रोथ के अगेंस्ट है। प्लांट का ग्रोथ तब ज़्यादा होता है जब CO2 ज़्यादा रहे, और फोटो रेस्पिरेशन तब होता है जब ऑक्सीजन ज़्यादा रहे। तो ये प्लांट ग्रोथ के स्टिमुलेशन के अगेंस्ट है। सो अपार्ट ऑफ सम यूजफुल फंक्शन इट इज़ ऑफन रिगार्डेड एज ए वेस्टफुल प्रोसेस। जो कि इसका यूजफुल फंक्शन फोटो रेस्पिरेशन का जो मैं पहले बताया, इसका कुछ यूजफुल फंक्शन भी है, पर इसको वेस्टफुल प्रोसेस ही माना जाता है ओवरऑल। आई हैव टेकन ऑल द स्टडी मटेरियल that I presented here from Arun publication. So my reference is Arun publication. Thank you and have a nice day.